हाँ 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 जी हाँ। बा ओके है जी ओके। ओके है जी, यही साइज ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है सर। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, हाँ जी। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, अच्छा जी। ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਇਮੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। सर मैं लैंडस्केप बेटर होगा जी, लैंडस्केप किया मैं। ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਸ ਜੀ ਬਸ 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 ਬਸ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਸਰ, ਇੱਥੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ? 8:55 ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਸਰ? ਆਪਾਂ ਸਹੀ 9 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ 9:50 ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਐਂਡ ਦਾ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਐਂਡ 9:50 ਠੀਕ ਤੇ, ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹੂੰਗਾ, WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਚੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮਝ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰ। ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 58 ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਇਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਆਟੋ ਹਾਂਜੀ, ਜੁਆਇਨ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਬੱਚੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ 9 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਮੈਂ ਆਪੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਆਪੇ ਸਰ। ਮਿਊਟ ਅਨਮਿਊਟ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਖੀਰਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ। ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਮਾਰੋਲੀ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਓਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਫਿਰ ਓਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਸਰ ਓਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਪਰ ਰਹਿ ਗਏ 5 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਪੀ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂ
ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇਹ ਸਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਇਹ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਐਡਮਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8:56 ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਬਸ 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 ਆ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਕਹੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ। ਓਕੇ ਸਰ। First of all, welcome to all the employees from NIMI, officials from Punjab and other states who are watching and also giving their best services to this online education program. So also a special welcome, Sat Sri Akal, and good morning to all my trainees who are sitting here in this online education program. So as we know that our country is passing through a very chronic diseases, corona. So our government of India is taking a special remedies to serve people by taking a necessary decisions. So in the same manner, our NIMI is taking a very good initiative to provide online education to its training
trainees by delivering a different lectures from all the states. So trainees as well all the staff from different states are taking a huge interest in these classes. So we can say that it is a total fruitful initiative by our NIMI organization. So through this, through this medium, NIMI and our technical education department, Punjab has given me an opportunity to represent my institute as well as department by delivering a lecture with yourself. Hope that it would be a knowledgeable and interactive session for you, and you will also learn new skills to enhance your knowledge and implement it in your organization course. So first of all, I will introduce you to myself. So सबसे पहले आपको जो है मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपने बारे में कि जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया कि जैसे हमारी जो कंट्री है डेट इज पासिंग थ्रू ए वेरी सीवियर कोरोना डिजीजेस। सो ऐसे में ये निमी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि क्यों ना जो टेक्निकल एजुकेशन को एक बढ़िया या अच्छे तरीके से करवा के बच्चे को जो घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट की जाए जी करी जाए। सो इसमें जो क्या है students as well all the officials from the all the states are taking a big interest in this and students are also showing their big interest in this। तो student है जो इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं एंड निम्मी इज ऑल्सो गिविंग ए फ्रूटफुल रिजल्ट अबाउट दिस। तो इसमें जो निम्मी ने ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह लिंक्स तैयार किए हुए हैं सो जिसके जरिए जो है जिसके माध्यम के जरिए जो है स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर बेस्ट एजुकेशन इन ए ऑनलाइन मोड। सो इसी में जो है हमारे भी डिपार्टमेंट में टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब दे हैव आल्सो गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ विद द ट्रेनिंग ऑफ द अदर स्टेट एज वेल एज फ्रॉम माई स्टेट्स। सो इसमें जो है जैसे कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मेरा नाम शरणप्रीत सिंह है। सो प्रेजेंटली मैं इस समय जो है presently I am working as a Turner instructor in government ITI Bassi Pathana, which is situated in Punjab. So this institute was established in 1962। So मैं गवर्नमेंट ITI बसी पठाना पंजाब से बात कर रहा हूँ। So जहाँ जो है जहाँ पे जो है जे इंस्टीट्यूट है जो 1962 में स्टार्ट हुआ था। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माय टॉपिक। सो इसमें जो है आज जो मेरा टॉपिक है डेट इज ऑफ मेजरमेंट। जैसे भी आपको पता है कि जो मेजरमेंट है डेट प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड अदर फॉर्म्स। सो जैसे कि आपको पता है कि जो मेजरमेंट है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेडिकल ट्रीटमेंट में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले करता है। सो उसके लिए मैं जो आज आपके साथ जो आज का टॉपिक शेयर करने वाला हूँ डेट इज ऑफ परसाइज इंस्ट्रूमेंट। सो परसाइज इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? परसाइज इंस्ट्रूमेंट वो उस इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, जो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जो है अपनी मेजरमेंट करते हैं। सो उसमें से जो दो परसाइज इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वन इज वर्नियर कैलिपर एंड सेकेंड वन इज माइक्रोमीटर। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की परसाइज इंस्ट्रूमेंट की क्या जरूरत है। जैसे बात करूं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परसाइज इंस्ट्रूमेंट उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और जो जिनकी रीडिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है उनको परसाइज इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। सो इसमें दो इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर की जो है एज ए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो है क्या उनकी जरूरत पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर है
उसकी कौन कौन से फील्ड में जहाँ कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज ए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। सो जो एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, नंबर एक चीज वर्नियर कैलिपर। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है भी, ये जो है बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो जहां पे हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स की जरूरत होती है वहां पे हम वर्नियर वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं। उसके बाद it can also be used for internal, external and to measure the diameter of the round jobs. So इसके अलावा इसको जो है हम बहुत सारी एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए, इंटरनल मेजरमेंट्स के लिए, जहाँ मतलब ब्रेड्थ चेक करने के लिए, वहां पे भी जो है हम इसे मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो वर्नियर कैलिपर है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर क्वालिटी जॉब्स। सो आपने आमतौर पे देखा होगा कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वहां पे जो हम जॉब्स वगैरह तैयार करते हैं, उनकी जो है हमें क्वालिटी चेक करने के, जॉब की क्वालिटी चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे भी जो है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट थिंग, बर्नियर कैलिपर का प्रयोग जो है हम जैसे किसी जॉब में सुराख वगैरह किए हैं तो उसकी डेप्थ वगैरह जानने के लिए, वहां पे भी मेजर करने के लिए हम इसे करते हैं। सो दूसरा है माइक्रोमीटर। सेकंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की जिसकी मैं आज बात करूंगा वो है माइक्रोमीटर। सो माइक्रोमीटर क्या है, इसको भी हम एज ए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। सो प्रिसीजन मींस जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो इसे एज ए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। फर्स्ट यूज इज दिस, एंड सेकंड वन, इसको हम डेप्थ डेप्थ जानने के लिए, लंबाई जानने के लिए, और थिकनेस ऑफ एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, माइक्रोमीटर है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, बट जो हमारा वर्नियर कैलिपर है वो उससे थोड़ा सा बड़े साइज के लिए यूज किया जाता है। सो माइक्रोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सो माइक्रोमीटर को जो है हम इसको भी क्वालिटी कंट्रोल में जो है मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में यूज करते हैं। सो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द वर्नियर कैलिपर। सो सबसे पहले जो है मैं वर्नियर कैलिपर के बारे में बताऊंगा कि वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, उसकी रीडिंग कैसे ली जाती है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द वर्नियर कैलिपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट अबाउट द वर्नियर कैलिपर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्नियर कैलिपर है जो, दिस इज ए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री वर्नियर कैलिपर की क्या है। सो जो वर्नियर कैलिपर है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1631। सो 1631 में पेरे वर्नियर फ्रांस के व्यक्ति द्वारा इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसकी एवेल्युएशन, इसकी इन्वेंशन कब हुई। तो इसकी जो वैल्यूएशन है डेट इज 1631 बाय पेरे वर्नियर ऑफ फ्रांस। सो कई बार आपको इंटरव्यू में आमतौर पे क्वेश्चनिंग हो जाती है कि ये जो डिवाइस है कि इसकी इन्वेंशन कब हुई थी, डेट इन 1631 बाय पेरे वर्नियर। सो मेन क्या है, स्टार्टिंग से जो है इट वर्क्स ऑन टू मेन स्केल्स। सो दो दो स्केल्स के ऊपर काम करता है। वन इज द मेन स्केल एंड सेकंड वन इज द वर्नियर स्केल। सो दोनों स्केल के जो डिफरेंस के ऊपर ये काम करता है। सो इट इज यूज्ड इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। सो काफी ज्यादा इसे एप्लीकेशंस के लिए बरतते हैं, जैसे कि साइंटिफिक लेबोरेटरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट। सो हिस्ट्री क्या है, इट इज इंट्रोड्यूस बाय पेरे वर्नियर इन 1631। कंट्री कौन सी है, फ्रांस। सो फ्रांस में 1631 में पेरे वर्नियर द्वारा इसे इन्वेंट किया गया था। सो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब ये कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है। जैसे आपने पहले किताबों में भी पढ़ा होगा, जो वर्नियर कैलिपर है ये दो स्केलों के जो है डिफरेंस के ऊपर काम करता है। सो इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो आमतौर पे क्या होता है, ए स्केल कैन नॉट मेजर ऑब्जेक्ट्स विच आर स्मॉलर देन 1 mm, बट ए वर्नियर कैलिपर कैन मेजर ऑब्जेक्ट्स अप टू 1 mm। सो आमतौर पे जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कि स्केल हमारे पास पहले अवेलेबल है। सो वर्नियर कैलिपर की क्या जरूरत पड़ी, क्यों वर्नियर कैलिपर को मेजरमेंट में उतारना पड़ा, क्यों उसकी जरूरत पड़ी। सो जैसे कि आपको पता है कि जो स्केल की मेजरमेंट है डेट इज ओनली लिमिटेड टू 1 mm।
सो स्केल है जो सिर्फ 1 mm मिनिमम रीडिंग नाप सकता है, उसके नीचे जो स्केल है वो कोई रीडिंग नहीं ले सकता। सो अगर आपको 1 mm से कम रीडिंग लेने हैं देन यू हैव टू यूज वर्नियर कैलिपर। 1 mm से कम रीडिंग लेने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ती है। सो इसमें प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्नियर कैलिपर है जो दो स्केलों के डिफरेंस के ऊपर काम करता है। वन इज द मेन स्केल एंड सेकंड वन इज द वर्नियर स्केल। सो दोनों स्केल में जो डिफरेंस है उसके अंतर के ऊपर काम करता है। सो जैसे कि दिस प्रिंसिपल कैन बी क्लियर्ड फ्रॉम दिस डायग्राम। सो जहां पे आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाला स्केल है दैट इज द मेन स्केल। सो ऊपर वाले स्केल को जो है हम मेन स्केल कहते हैं। सो जो मेन स्केल है इसमें जो है 0 से लेके 1 तक जो है 10 ग्रेजुएशंस होती हैं। ग्रेजुएशंस का मतलब होता है कि 10 लाइनें होती हैं। सो जो हर एक लाइन है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 0 से लेके 1 mm जो मेन स्केल है उसमें 0 से लेके 1 तक जो है 10 लाइनें होती हैं। सो जो हर एक लाइन है वो 1 mm को जो है ग्रेजुएट करती है, 1 mm को दर्शाती है। सो ऐसे ही मतलब अगर ऊपर जैसे हमारे मेन स्केल में दिखाई दे रहा है कि 0 से लेके 3 तक जो है वी कैन से कि जहां पे 30 लाइन दिखाई दे रही है 0 से लेके 3 तक। सो डेट मीन्स इट इज शोइंग मेन स्केल जो वो है वो 30 mm शो कर रहा है। सो हमें एक चीज ध्यान देनी है कि जो 0 से लेके 1 mm तक है वो 10 लाइनें होती हैं और जो हर एक लाइन है वो 1 mm को दर्शाती है। मेन स्केल की हर एक छोटी लाइन 1 mm को दर्शाती है। उसके बाद अगर हम वर्नियर स्केल की बात करें, जो नीचे वाला स्केल है, नीचे वाले में जा में दिया हुआ है, वो जो है वो उसमें भी जो है 10 ग्रेजुएशन होती है। उसमें भी 0 से लेके 10 तक 10 लाइनें हैं। जो आपको 10वीं लाइन जो है वहां पे जो डिजिट लिखा आ रहा है वो रेड कलर में है। बट ये जो 10 लाइनें हैं इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो 0 से 1 लाइन है वो 1 mm की नहीं होती, वो 1 mm से कम होती है। वो कैसे कम होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि मेन स्केल में जो है 0 से लेके 1 तक जो है 10 लाइनें होती है और हर एक जो लाइन है 1 mm की होती है। उसी तरीके से जो वर्नियर स्केल है वो 0 से लेके 10 mm का होता है, लेकिन ये जो 10 लाइनें हैं ये मेन स्केल की जो 9वीं लाइन है उसके साथ मैच करती हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया भी ये जो 10 mm जो ऊपर वाला है उससे ये कम है। कम कितना है? ये 9 mm के मेन स्केल के बराबर जो है वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल की 9 लाइंस एंड जो वर्नियर स्केल की है वो 10 लाइंस, बोथ आर इक्वल। सो मेन स्केल का 9 mm हो गया और वर्नियर स्केल का जो है वो 10 लाइनें होगी। सो इसमें जो एक लाइन है वर्नियर स्केल की वो 1 से कम होती है। 1 से कितनी कम होती है? 1 से कम होती है 0.1 mm। सो इसमें हम क्या करेंगे, जो हर एक लाइन है वर्नियर स्केल की वो 0.9 mm दर्शाती है। मेन स्केल की एक लाइन दर्शाती है 1 mm और वर्नियर स्केल की जो एक लाइन है वो दर्शाती है 0.9 mm। सो अब इसका प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि ये जो वर्नियर कैलिपर है ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। सो ये जो वर्नियर कैलिपर है ये दोनों स्केलों के जो है डिफरेंस के ऊपर काम करता है। जैसे ऊपर की जो देखो जहां पे नीचे लिखा हुआ है बॉक्स में, मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm एंड वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 0.9 mm। सो दोनों स्केलों के अगर हमको अंतर करेंगे तो डेट विल बिकम 0.1 mm। सो 0.1 mm का जो डिफरेंस है डेट इज यूज्ड एज टू टेकन एज अ रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। सो दोनों स्केलों की जो एक डिवीजन का अंतर है जितना वो आएगा उसको हम जो है इसके प्रिंसिपल के तौर पे जो इस्तेमाल करके इसकी हम रीडिंग लेते हैं। सो उसके बाद इसमें एक दो लाइनें और आपको बताता हूँ जिससे आपको एडिशनल क्लियर हो जाएगा। जहां पे द प्रिंसिपल ऑफ द वर्नियर कैलिपर, हियर द मेन स्केल हैज द टोटल लाइंस ऑफ 1 mm।
सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मेन स्केल की है 10 लाइनें 1 mm की होती है, एंड वर्नियर स्केल हैज 10 लाइंस शोइंग 9 mm, और जो वर्नियर स्केल है उसकी जो 10 लाइनें हैं वो 9 mm शो करती हैं। सो वी कैन से जो इसमें क्या है, जो लीस्ट काउंट जो मेन स्केल का रहेगा वो 1 mm का होगा, मतलब हर एक लाइन जो है मेन स्केल की वो 1 mm को दर्शाएगी, और जो वर्नियर स्केल की है वो 0.9 mm को दर्शाएगी। सो जो द डिफरेंस बिटवीन one graduation of main scale and one graduation of vernier scale is 0.1 mm. सो दोनों का जो एक डिवीजन का अंतराल है, जैसे हम बात करें कि वर्नियर स्केल का जो है एक डिवीजन 1 mm की, मेन स्केल की एक डिवीजन 1 mm होती है, और वर्नियर स्केल की जो एक डिवीजन है वो होती है 0.9 mm। अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो बच जाता है 0.1 mm। सो उसी डिफरेंस को हम इसके प्रिंसिपल के तौर पे जो है इसका इस्तेमाल करते हैं रीडिंग्स लेने के लिए। सो अगर हम बात करें कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, सो इट इज द लीस्ट काउंट इज 0.1 mm। सो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने क्लियर कर दिया कि आपको इसका प्रिंसिपल है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। सो अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का क्या होता है। सो इट इज फॉर द नॉलेज ऑफ द ट्रेनीज, ये ट्रेनीज की नॉलेज के लिए है कि जो लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है। सो लीस्ट काउंट इज द मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय द डिवाइस। सो किसी भी डिवाइस का जो लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम रीडिंग होती है जो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम ले सकते हैं। सो एनी इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग अ लीस्ट काउंट विच द मिनिमम रीडिंग दैट इट कैन टेक। सो कम से कम रीडिंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो उस इंस्ट्रूमेंट से के द्वारा ले सकता है उसे हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे हम वर्नियर कैलिपर की बात करें, जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है। सो 0.1 mm का मतलब क्या है, 0.1 mm का मतलब होता है कि जे 1 mm का जो है 0.1 mm मीन्स 1/10। सो अगर हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 0.1 mm का मतलब होता है 1/10। 1/10 mm का मतलब क्या है कि 1 mm का 10th भाग। सो मतलब कहने का भाव, जो हमारा वर्नियर कैलिपर है 1 mm का 10वां हिस्सा मेजर करता है। सो इतना ज्यादा परसाइज है कि अगर 1 mm को हम 10 भागों में डिवाइड कर दें, सो उसका जो 10th पार्ट तक जो है इसका मेजर कर सकता है। सो इतनी ब्रीकीज है, इतना एक्यूरेट और परसाइज होता है वर्नियर कैलिपर दैट इट कैन मेजर अप टू 10th पार्ट ऑफ अ 1 mm। सो देन व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर। सो अब जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि वर्नियर कैलिपर के पार्ट कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले आ जाता है वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल, देन वर्नियर स्केल, देन थंब स्क्रू, देन इज द लॉक स्क्रू, देन डेप्थ रॉड, देन फिक्स जा, एंड देन इज स्लाइडिंग जा। सो जैसे मैं बात करूं, सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले है जो इसका मेन पार्ट है दैट इज मेन स्केल। सो मेन स्केल है जो बिल्कुल आपको लंबा बिल्कुल दिखाई दे रहा है, दैट इज रनिंग थ्रू आउट द डिवाइस। जो मेन स्केल किसको वर्नियर कैलिपर का कहते हैं, जो बिल्कुल लंबा स्केल दिखाई दे रहा है एज लाइक अ स्टील रोल, इसे हम मेन स्केल कहते हैं। दिस इज द फिक्स पोर्शन ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये बिल्कुल जो है फिक्स पोर्शन होता है डिवाइस का। उसके बाद आ जाता है वर्नियर स्केल। सो आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में कि जो वर्नियर स्केल है मेन स्केल के ऊपर लगा होता है, जो लोअर पोर्शन इज कॉल्ड एज अ वर्नियर स्केल। सो ये जो वर्नियर स्केल है ये मूवेबल स्केल होता है वर्नियर कैलिपर के ऊपर। सो मेन स्केल इज अ फिक्स स्केल एंड वर्नियर स्केल इज अ मूवेबल स्केल। सो देयर आर टू काइंड ऑफ जाज, वन इज कॉल्ड एज अपर जा। इसमें एक अपर जा होता है जिसके जरिए जो है हम इंटरनल मेजरमेंट लेते हैं, उसे हम अपर जा कहते हैं। उसके बाद लोअर जा आ जाता है जिसके जरिए जो है हम एक्सटर्नल रीडिंग्स लेते हैं। देन नेक्स्ट वन इज ए लॉक स्क्रू। सो लॉक स्क्रू का मतलब क्या होता है, लॉक स्क्रू, इफ यू हैव टेकन एनी जॉब इनसाइड योर जाज। अगर आपने कोई भी जॉब जो है जा में क्लैंप कर ली, अब आपको इंस्ट्रूमेंट को लॉक करने की जरूरत है।
देन यू कैन यूज दिस एज ए लॉकिंग स्क्रू। तो उस समय जो है आप लॉकिंग स्क्रू का इस्तेमाल करके इस डिवाइस को लॉक करोगे। सो नेक्स्ट वन इज अ डेप्थ रॉड। सो डेप्थ रॉड इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। तो डेप्थ रॉड एक मेजरिंग साथ में एक रॉड लगी होती है जो होल्स वगैरह की या जॉब्स की जो है डेप्थ नापने के काम आती है। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो इसमें आउटसाइड जाज लगे होते हैं वो एक्सटर्नल रीडिंग लेने के काम आते हैं। उसके बाद जो इनसाइड जाज हैं वो जो है इंटरनल रीडिंग लेने के काम आते हैं। जैसे अंदरूनी रीडिंग लेनी हो, किसी भी खाली जॉब है उसकी इंटरनल है, उसमें सुराख निकाल उसकी अंदर की रीडिंग लेनी है, तो उसके लिए जो है हम जो है इनसाइड जाज का इस्तेमाल करेंगे। और जो आउटसाइड जाज है उसके जरिए जो है हम बाहरली जो है जॉब का इस्तेमाल करेंगे, बाहरले जाज का इस्तेमाल करेंगे। सो उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाती है हमारी डेप्थ बार। डेप्थ बार का इस्तेमाल जो है हम सुराख की जो है डेप्थ मेजर करने के लिए करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि जो हमारा मेन स्केल है डेट इज बोथ ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर एज वेल एज इंच। जो हमारा मेन स्केल है वो सेंटीमीटर में भी होता है और इंच में भी होता है। सो मेन स्केल जिस जिस रीडिंग में या जिस डायमेंशन में ले रहे हैं वी हैव टू कैलिब्रेट द वर्नियर स्केल इन द सेम डायमेंशन। सो उसी डायमेंशन में जो है हमें वर्नियर स्केल लेना पड़ता है। सो उसके बाद आ जाती है कि वर्नियर कैलिपर की कौन कौन सी मेन टाइप्स है। So vernier caliper mostly comes in three types. One is called as a digital caliper, second one is called as a dial caliper, and third one is a vernier caliper. So इसकी जो तीन मेन जो टाइप्स आ जाती हैं, फर्स्ट वन इज अ डिजिटल कैलिपर। सो डिजिटल कैलिपर क्या होता है? डिजिटल कैलिपर वो होता है जैसे आजकल आपके जो मोबाइल में जैसे आपको डिजिटल जो है टाइम देखने को मिलता है कि 9:30 का टाइम हो गया। आप जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो उसमें सीधी रीडिंग आ जाती है 1 2 3 4 लिख के। सो ऐसी रीडिंग अगर हमारे वर्नियर कैलिपर में आ रही है तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम डिजिटल कैलिपर कह देते हैं। सेकंड वन इज अ डायल कैलिपर। डायल कैलिपर क्या है? हमारे पास जो ओल्डर घड़ियां थी, पुरानी वॉचेस हम इस्तेमाल करते थे समय देखने के लिए, हमारे पास घर में टाइम पीस है जिसमें जो है छोटी छोटी जो है डायल्स हैं, डायल्स घूमती है। तो उस डायल्स के जरिए जो है हम मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेते हैं, तो उसे हम जो है डायल कैलिपर कह देते हैं। थर्ड वन इज वर्नियर कैलिपर। सो तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो आमतौर पे हमारी लैब में, वर्कशॉप में, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला उसे हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। सो दीज आर द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर। सो नेक्स्ट वन, हाउ टू रीड अ वर्नियर कैलिपर। सो वर्नियर कैलिपर को हम उसकी रीडिंग कैसे लेंगे? व्हाट इज द मेथड ऑफ व्हाट इज द मेथड टू रीड वर्नियर कैलिपर? सो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे ली जाएगी? सो दिस इज द मेथड हाउ टू रीड अ वर्नियर कैलिपर। सो इसमें रीडिंग लेते समय आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है? यू हैव टू टेक द टू रीडिंग्स। सो आपको दो रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी। एक तो है नंबर एक है कि आपको मेन स्केल की रीडिंग लेनी पड़ेगी जो हमें वाइट सा दिखाई दे रहा है, जिसमें 0 से लेके 50 तक की ग्रेजुएशन दिखाई दे रही है। दूसरा हमें जो है लोअर रीडिंग लेनी पड़ेगी, वो है पिंक कलर वाली, वो है वर्नियर स्केल की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि पहले हम जो है रीडिंग लेंगे ऊपर वाले स्केल की, मेन स्केल की। मेन स्केल की रीडिंग लेने के बाद जो है हम लोअर स्केल की, वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रीडिंग आएगी उसे हम जो है टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर कहेंगे। सो इसमें चीज आप देख लीजिए कि जैसे मेन स्केल की अगर हमने रीडिंग लेनी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक इट। तो इसमें आप क्या चीज देखोगे? जो वर्नियर स्केल की जो 0 है वो कहाँ पे जाके लोकेट हो रही है। सो आपने देखना है ध्यान से कि वर्नियर स्केल की जो पिंक वाला स्केल दिखाई दे रहा है उसकी जो 0 है कहाँ पे लोकेट हो रही है, कहाँ पे पोजीशन हो रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपने जो है मेन स्केल की जो रीडिंग जो रीड करनी है। सो इसमें आपको क्लियर कर देता हूं कि जो रीडिंग है, जैसे हम मेन स्केल की रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे तो जहां पे आप देखो कि वर्नियर की 0 जो है मेन स्केल की 5th रीडिंग के इक्वल आ रही है,
जहां पे रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज द 5th रीडिंग। अगर हम 0 से लेके लाइन काउंट करें, सो 0 के बाद 1 2 3 4 5, सो जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो 5 mm होगी। सो अब हम चेक करेंगे कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हो। सो वर्नियर स्केल की जो 0 है वो 5th लाइन के साथ मैच कर रही है, सो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है डेट इज 0। सो 5 + 0 डेट इज 5 mm। सो वर्नियर स्केल की जो टोटल रीडिंग होगी वो 5 mm होगी। सो उसके बाद जो है देर आर सर्टन मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्नियर। सो इसमें क्या चीज है, आप देखोगे कि वर्नियर कैलिपर की एक मैं आपको और रीडिंग दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक कि जो इसकी 0 है वो कहाँ पे पोजीशन हो रही है। आपने वर्नियर की 0 चेक करनी है कि मेन स्केल के कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप चेक करोगे 0 जो है, जहां रेड कलर का ऊपर से एरो दिखाई दे रहा है, सो वो जो है 23rd रीडिंग है मेन स्केल की। 20 21 22 एंड 23। सो वो 23 जो है वो 23 रीडिंग होगी मेन स्केल की, बिकॉज जो वर्नियर की 0 है वो 23rd रीडिंग से थोड़ी सी आगे दिखाई दे रही है। बट जहां पे नोट करने की बात क्या है कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो तो 23 होगी, बट आगे क्या चीज है कि जो 0 है वो वर्नियर की मेन के साथ मैच नहीं कर रही है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल चेक कि कौन सी लाइन है जो 0 से आगे है मेन स्केल के साथ जो है वर्नियर की कौन सी लाइन एक ही लाइन जो है बिल्कुल बना रही है। सो इसमें आप चेक करोगे कि जहां पे ग्रीन कलर का एरो बनाया हुआ है, सो वर्नियर की 4th लाइन है वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट लाइन जो है मेन स्केल के साथ बना रही है। सो इसमें रीडिंग क्या होगी, जो आपका 4 रीडिंग होगी वर्नियर की एंड 23 रीडिंग थी डेट वाज ऑफ मेन स्केल। 23 रीडिंग होगी मेन स्केल की और जो 4 रीडिंग है डेट इज ऑफ द वर्नियर स्केल। पर इसमें आप क्या करोगे, जो 4th रीडिंग है उसे आप जो है इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज लीस्ट काउंट है हर एक जो लाइन है डेट इज रिप्रेजेंटिंग द लीस्ट काउंट। सो आपको जो 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0.1 के साथ, सो वो जो हमारा बन जाएगा 0.40 रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। सो दोनों को जब ऐड करोगे 23 + 0.40 इट विल बिकम 23.40 mm। सो इस तरीके से जो है हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। और सिमिलरली सम मोर एग्जांपल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर आर देयर। सो इसमें क्या है, आपको जो फर्स्ट एग्जांपल दिखाई दे रही है इसमें क्या चीज है, आपको आप ध्यान से देखोगे जो वर्नियर की 0 है वो मेन के 11 के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। सो डेट मीन्स जो मेन स्केल की रीडिंग है 11 mm है प्लस जो वर्नियर की है वो 0 है। सो टोटल रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल इज ओनली 11 mm, बिकॉज जो 0 है मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। सेकंड रीडिंग इज देयर। सेकंड रीडिंग में आप क्या देख रहे हो, को जो वर्नियर स्केल की 0 है वो मेन स्केल की 5th रीडिंग के साथ ज्वाइन कर रही है। सो डेट मीन्स जो मेन जो टोटल रीडिंग है वर्नियर कैलिपर की वो 5 mm है। उसके बाद सम मोर एग्जांपल्स ऑफ वर्नियर आर देयर। तो जहां पे आपको दिखाई देगा कि इस जो रीडिंग्स में मैंने सेपरेट दिखाया है वो क्या है कि जो 0 है वो बिल्कुल मेन स्केल के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही। जो वर्नियर की 0 है वो मेन स्केल की मेन स्केल की बिल्कुल फर्स्ट रीडिंग के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही। सो इट इज समवट डिफरेंट लाइन। सो इसमें आप क्या चेक करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आप है मतलब मेन स्केल की रीडिंग नोट करोगे। मेन स्केल की जो रीडिंग आप नोट करोगे है इसमें क्या है 20 + 21 22 एंड 23। सो 23 जो रीडिंग है डेट इज द मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद आप चेक करोगे कि इसमें देखो कि जो 4th लाइन है वर्नियर की वो मेन स्केल के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। सो वर्नियर स्केल की जो 4th लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है, उसे हम जो है लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 0.4। सो टोटल रीडिंग बिकम्स 23.4 mm। सो सिमिलरली जो है इस और जो राइट हैंड साइड आपको रीडिंग दिखाई दे रही है इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक कि जो वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो 0 कहाँ पे जो है लोकेट कर रही है। तो आपको दिख रहा है कि
5 + 3 48th रीडिंग के बाद जो है जीरो जो है वर्नियर की वहां पे लोकेट कर रही है। सो आपने क्या करना है, जो मेन स्केल की रीडिंग है उसे आपने 48 लिख देना है। 48 लिखने के बाद नाउ यू विल चेक कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन है जो मेन स्केल के साथ एक ही लाइन बना रही है, बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। यू विल फाइंड इट कि जो वर्नियर स्केल की 8th लाइन है और 80 के पैरेलल है, वो बिल्कुल एक ही लाइन बना रही है। सो 8th लाइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट दैट इज 0.1 mm, सो इट विल बिकम 0.8। सो दोनों रीडिंग्स को ऐड करोगे 48 + 0.8 इट विल बिकम 48.8 mm। सो इस तरीके से जो है हम जो वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग्स वगैरह मतलब बिल्कुल परसाइज मैनर में जो है वो ले सकते हैं, चाहे वो रीडिंग जो है जीरो के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, जहां फिर कोई आगे कोई और लाइन कोइंसाइड कर रही है। सो मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स बता दिए हैं भी कैसे हमने जो है वर्नियर कैलिपर की रीडिंग चेक करनी है। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन, नेक्स्ट स्टेप इज द एप्लीकेशन ऑफ द वर्नियर कैलिपर। सो मैंने आपको पहले भी बताया है, it can be used for depth measurement, for measuring inside diameter, outside diameter, and it can also be used for uh, quality control instruments. So then what is the use of the inside jaws of the vernier caliper? So you will check here कि अगर आपने inside jaws को properly इस्तेमाल करना है, so उसके लिए जो correct position क्या रहेगी? सो ये जो आपके इनसाइड जा है, तो इसमें आप चेक करोगे कि जो इनसाइड जा है वो बिल्कुल जो जिस चीज की आप जो है इंटरनल ब्रेड्थ चेक कर रहे हो या इंटरनल लेंथ चेक कर रहे हो, उसमें जो है बिल्कुल इसके जाज बिल्कुल 90 डिग्री होने चाहिए अगर आपको जो वर्नियर कैलिपर को करेक्टली यूज करना है। सो नीचे दो और पोजीशन दी हुई हैं, सो दीज आर द रॉन्ग पोजीशन। इसमें एक जो है इसके जा जो है डेट आर टिल्टेड, एंड दूसरी जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि इनके जो जहाज के टॉप मोस्ट पोर्शन है वही बिल्कुल जो है मतलब इसमें जो फिट दिखाई दे रहे हैं, बट द एग्जैक्ट पोजीशन इज कि आपको जो जहाज है बिल्कुल जॉब के 90 डिग्री पे रखने हैं इसको करेक्टली यूज करने के लिए। सो उसके बाद अगर आपको जो है डेप्थ वर्नियर कैलिपर को प्रॉपरली इस्तेमाल करना है तो उसके लिए जो करेक्ट पोजीशन क्या चाहिए। सो इसमें जो है करेक्ट पोजीशन है जो फर्स्ट और सेकंड है वो बिल्कुल रॉन्ग ही दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट में जो है उसमें जो है इसकी टिल्टेड पोजीशन है, हम इसको कभी भी जो है टिल्टेड पोजीशन में या तिरछे पोजीशन में कभी भी यूज नहीं करना। सेकंड पोजीशन है इसको इन्वर्टेड पोजीशन में बिल्कुल उल्टा करके जो फिट किया गया है, सो वी हैव टू नॉट यूज्ड इन दिस मैनर। सो जब भी इसे इस्तेमाल करना है इट शुड बी ऑलवेज 90 डिग्री। तो रीडिंग लेते समय अगर आपको डेप्थ बार का इस्तेमाल करना है तो 90 डिग्री पे आप इसका इस्तेमाल करोगे। सो इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड एज ए माइक्रोमीटर। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो वर्नियर कैलिपर है उसको हम जो एज ए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसके कौन से प्रिंसिपल पे ऊपर काम करता है, तो उसके कौन से मेन जो पार्ट्स हैं उसकी रीडिंग कैसे कैलिब्रेट की जाती है, what are the applications of vernier caliper. Now I am going to start the next important precision instrument that is called as a micrometer. So जैसे मैंने आपको बताया है कि जो माइक्रोमीटर है उसे भी हम जो एज ए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। प्रिसीजन का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है विच इज मोर एक्यूरेट, which can give more accurate measurements. So outside micrometer is one and the more device which is more accurate than the vernier caliper. So first of all I will tell you कि इसकी जरूरत क्या है, क्या इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। So इसकी जो जरूरत है ये बिल्कुल स्मॉल जैसे ऑब्जेक्ट्स की अपने रीडिंग लेनी है, बिल्कुल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मेजरमेंट्स करनी है। जैसे बात करें कि हमने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है उसमें इसका इस्तेमाल करना है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में इस्तेमाल करना है, इसको लैब्स में इस्तेमाल करना है, क्वालिटी चेक के लिए इस्तेमाल करना है, तो वहां पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोमीटर का। सो इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन से पार्ट्स हैं और कौन से प्रिंसिपल के ऊपर जो है माइक्रोमीटर काम करता है। सो जो हमारा माइक्रोमीटर है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू एंड नट।
जो हमारा माइक्रोमीटर है वो स्क्रू एंड नट प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। वी नो दैट व्हेन ए स्क्रू इज टर्न्ड थ्रू नट बाय वन रेवोल्यूशन it advances by one pitch distance. If the circumference of the screw is divided into equal parts, its rotation through one division will cause the screw to advance through length. So कहने का भाव क्या है कि जो हमारा माइक्रोमीटर है वो स्क्रू और नट के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम एक नट ले लें और एक स्क्रू ले लें। जब स्क्रू को हम एक चक्कर पूरी रोटेशन देंगे, जब स्क्रू को हम एक चक्कर पूरी रोटेशन देते हैं तो उसमें क्या है, वो जो स्क्रू है पूरा एक चक्कर जो है एडवांस में चला जाता है। एडवांस में कितना जाता है, जितनी जो है स्क्रू की पिच होती है। सो स्क्रू की पिच के जो इक्वल है वो उसकी जो है एडवांस जड़ी रोटेशन हो जाती है। सो इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है स्क्रू एंड नट के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। सो इस इंस्ट्रूमेंट को जो है इतना हम प्रिसीजनली और इसे इतना एक्यूरेटली यूज कर सकते हैं कि जो है अगर हमने इसे बहुत ज्यादा एक्यूरेट तैयार करना है, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तैयार करना है, तो हम जो है छोटी से छोटी पिच का तैयार करके जो है इसे और ज्यादा एक्यूरेट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो तैयार कर सकते हैं। सो इसकी जो एक्यूरेसी है वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा होती है। सो स्क्रू और नट जो है प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। सो उसके बाद व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोमीटर। सो अब जो है इंपॉर्टेंट थिंग आ गई कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं। सो अगर हम बात करेंगे इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज फ्रेम। सो माइक्रोमीटर का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फ्रेम। सो फ्रेम जो है बिल्कुल एक नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रेम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रेम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज एनविल। सो उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो दैट इज अ स्पिंडल फेस एंड fourth part is spindle and fifth part is thimble, then next is ratchet stop, then seventh one is spindle lock and last one is barrel. So इन parts का काम क्या है? So by the name I will tell you about the every part. So first of all I will tell you कि जो इसका फ्रेम है, जैसे 8th नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसका फ्रेम है। सो फ्रेम का क्या काम होता है? So C-shaped body that holds the anvil and barrel in constant relation to each other. So frame जो है एक C-shaped body होती है माइक्रोमीटर में, as you have already seen in this picture. 8 नंबर पे आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है फ्रेम है जो C-shaped बॉडी है। सो इसका काम क्या होता है, जो दोनों एनविल्स को एक और 2 नंबर को आपस में जोड़ के रखता है। सो ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड होना चाहिए बिकॉज जो मेजरमेंट में जो है एनविल पे ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है। अगर आपका फ्रेम सॉलिड है देन इट कैन मेजर accurate results. So it can measure and also give accurate results. So second one is anvil. So anvil का क्या काम होता है? जो anvil होता है that holds the job which is to be measured. So anvil का क्या काम होता है? जो anvil होते हैं जो दोनों तरफ से जॉब को पकड़ते हैं उसे हम anvil कहते हैं। So anvil का क्या काम है? इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो anvil फिक्स रहता है और राइट हैंड साइड का मूव करता है। सो उसके बाद आ जाता है स्पिंडल। सो स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल जो है राइट हैंड पोर्शन को हम इसे स्पिंडल कहते हैं। सो स्पिंडल जो है इसमें मूव करता है 3 नंबर पार्ट। सो जो स्पिंडल है वो जो है 5 नंबर पार्ट जो है थिम्बल के थ्रू जो इसे रोटेशन मिलती है। सो द शाइनी सिलेंड्रिकल कंपोनेंट दैट द सिंबल कॉजेज टू मूव टुवर्ड द एनविल। तो स्पिंडल किसे कहते हैं? स्पिंडल जो है थिम्बल के आगे फिक्स होता है। सो थिम्बल के जरिए जो है हम एनविल को मूवमेंट देते हैं। अगर एनविल को जो मूवमेंट मिलती है तो आगे जाके वो जॉ को ग्रिप करता है। सो उसके बाद जो है थिम्बल क्या है? थिम्बल उस कंपोनेंट को माइक्रोमीटर को कहा जाता है जो जिसे हम रोटेट करते हैं। वो रोटेशन के जरिए जो है आगे जो उसकी मूवमेंट है वो मतलब आगे स्पिंडल को देता है और स्पिंडल जो है आगे मूवमेंट जो आगे जाके एनविल को देता है। तो इस तरीके से जो है पूरा जो है हमारा माइक्रोमीटर वर्क करता है।
उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रैचेट स्टॉप। सो रैचेट स्टॉप क्या होता है? सो बिल्कुल लास्ट वाला 6 नंबर जो दिखाई दे रहा है इसे हम रैचेट स्टॉप बोलते हैं। सो रैचेट स्टॉप का क्या काम होता है? सो रैचेट स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है जैसे हमने फॉर एग्जांपल कि हमने जॉब को जो है दोनों एल्बम्स में ग्रिप कर लिया। सब अब ग्रिपिंग करने के बाद जो हमारी मेजरिंग जॉब है जिसे हमने मेजर करना है उस जॉब के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, तो ये जो काम है ये रैचेट का होता है। रैचेट स्टॉप क्या करता है? अगर रैचेट स्टॉप को हम जो है बिल्कुल टाइट कर देते हैं, उसके बाद ये एक नए तरीके की साउंड जो है निकालता है। उस साउंड से हमें इवैल्यूएट हो जाता है कि अब जो है जॉब के ऊपर जो है बिल्कुल जो है इक्वल और यूनिफॉर्म प्रेशर पड़ चुका है और इससे जो है ज्यादा जो है रोटेट करने की जरूरत नहीं है। सो अब नेक्स्ट थिंग आ गई कि लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर। सब अब माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है? सो आपको बता दूं जो को माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है डेट इज 0.01 mm। मैंने पहले आपको वर्नियर कैलिपर का बताया था, तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था डेट वाज 0.1 mm। डेट वाज द 1/10 ऑफ 1 mm। सो 1 mm का 10th पार्ट था, तो वो जो तो लीस्ट काउंट था वो वर्नियर कैलिपर का था। सो जो अब माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है? माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट है डेट इज 0.01 mm। सो अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करें डेट इज 1/100 ऑफ mm। सो 1/100 का मतलब क्या है कि इट मींस माइक्रोमीटर कैन मेजर 100 पार्ट ऑफ 1 mm। सो 1 mm का 100वां भाग भी जो है माइक्रोमीटर जो है मेजर कर सकता है। सो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि वर्नियर कैलिपर जो है 10th पार्ट है जो 1 mm का मेजर कर सकता है, और जो है माइक्रोमीटर है वो जो है हमारा जो है 100 पार्ट है जो 1 mm का मेजर कर सकता है। सो उसके बाद हाउ टू टेक द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। सो माइक्रोमीटर की जो रीडिंग कैसे ली जाए, जो कैसे उसे रीड किया जाए। सो इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे देखो इसकी रीडिंग चेक करो, जो हमारे पास माइक्रोमीटर दिख रहा है। सो इसमें जब भी आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक द रीडिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड तरफ की रीडिंग नोट करोगे, तो उसमें आप नोट करोगे कि जहाँ पे जो रीडिंग दिखाई दे रही है डेट इज 5 + 1 6 + 7। सो जो लेफ्ट हैंड साइड की रीडिंग है इसे हम जो कहते हैं थिम्बर रीडिंग कहते हैं। जो थिम्बर रीडिंग है वो 7 है। उसके बाद जो विल चेक द राइट हैंड साइड रीडिंग, तो उसे जो है हमने 7 रीडिंग है जो चेक कर ली, उसके बाद वी विल टेक द राइट हैंड साइड रीडिंग। सो राइट हैंड साइड रीडिंग है जो बिल्कुल सेंटर में लाइन आ रही है, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है बिल्कुल हम राइट साइड देखेंगे भी कौन सी लाइन मैच कर रही है। सो 7 रीडिंग है जो हमने थिम्बर रीडिंग ले ली, प्लस जो राइट हैंड साइड चेक करेंगे कि भी जो सेंटर लाइन है उसके जो पैरेलल है कौन सी लाइन जो मैच कर रही है। तो आप चेक करोगे कि 35 + 36 37 एंड 38th लाइन। सो जो 38th लाइन है जो राइट साइड है जो वो मैच कर रही है। सो इसका लीस्ट काउंट है 0.01। सो उस 38th लाइन को आप जो है 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो 0.38 mm बन जाएगा। सो लेफ्ट हैंड की रीडिंग थी 7 प्लस जो राइट हैंड की रीडिंग बन रही है वो है 0.38। सो टोटल रीडिंग बन गई 7.38 mm। सो इस तरीके से जो माइक्रोमीटर की रीडिंग लेंगे। सो उसी तरीके से जो है देयर इज अ वन मोर रीडिंग। सो इसमें जो है रीडिंग है माइक्रोमीटर की। सो इसमें क्या चीज है, आप लेफ्ट हैंड साइड की पहले रीडिंग लोगे, तो जहां पे देखोगे कि जो ऊपर की रीडिंग है वो 3 mm दिखाई दे रही है। बट एक चीज और है कि जहां पे 3 mm के साथ जो है आपको हाफ डिवीजन है जो वी आर ऑल्सो सेइंग बिलो द लाइन। इसी थर्ड लाइन के नीचे जो है हाफ डिवीजन है जो और दिख रही है। सो ऐसे केस में जो है हम जो रीडिंग में क्या करोगे, आप 3 रीडिंग्स है जो 3 mm ऊपर के ऐड कर लिया, और जो नीचे से एक और लाइन दिख रही है उसका आप आधा mm इस रीडिंग में जोड़ोगे, तो रीडिंग पहले बन जाएगी 3.5 mm। 3 लाइंस ऊपर और जो नीचे से स्पेशल एक लाइन दिखाई दे रही है, आधी लाइन दिखती है, उसका जो है आधा mm इसमें ऐड कर दोगे। सो रीडिंग बन जाएगी 3.5 mm। उसके बाद वी विल रीड द रीडिंग ऑफ द राइट हैंड साइड। उसके बाद जो राइट हैंड साइड की जो रीडिंग ले लोगे डेट इज 46। सो 3.5 +
0.46, so total reading becomes 3.96. सो इस तरीके से जो है आप ऐसी रीडिंग्स ले सकते हो जिसमें जो है हमें हाफ डिवीजन है जो मतलब वो नीचे से भी दिखाई दे रही है। सो एक और रीडिंग मैं आपको दिखाता हूँ, वन मोर एग्जांपल ऑफ माइक्रोमीटर। सो इसमें क्या चीज है कि जो हमारी रीडिंग है, सो आप चेक करोगे कि ऊपर की रीडिंग है जो 7 दिखाई दे रही है। 7 रीडिंग के बाद जो है आपको नीचे से जो है आधी रीडिंग और दिखाई दे रही है। सो 7 प्लस 0.5 इट विल बिकम 7.5। सो 7.5 जो रीडिंग है वो तो लेफ्ट हैंड साइड की रीडिंग होगी। अब राइट हैंड साइड हम जो इस सेंटर वाली लाइन के कोरस्पॉन्डिंग लाइन रीड करोगे वो हमारी है हमारी 38th लाइन, 35, 36, 37, 38। सो 7.5 प्लस 0.38, so it will become 7.88 रीडिंग। सो जो हमारी टोटल रीडिंग हो जाएगी वो 7.88 mm हो जाएगी। सो उसके बाद आ गया नेक्स्ट स्टेप इज जीरो एरर ऑफ द माइक्रोमीटर। सो आमतौर पे इसमें एक चीज देखने वाली होती है कि जो हमारा जीरो एरर होती है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई एरर होता है। जो माइक्रोमीटर का जो मेन चीज है वो एरर क्या रहता है कि इसमें जीरो एरर रहता है। सो जीरो एरर आपने कैसे चेक करना है, देखो इसमें एक सेंटर लाइन होती है। सेंटर लाइन अगर राइट हैंड साइड थिम्बल लाइन के बिल्कुल जीरो के को सेंट्रिक है, एक ही लाइन में जो आ रही है, दैट मींस द माइक्रोमीटर हैज नो जीरो एरर। जो जीरो है राइट हैंड साइड की वो बिल्कुल बैरल के साथ एक ही लाइन कोइंसाइड कर रही है, दैट मींस इट हैज नो जीरो एरर। सो दूसरा चीज है कि जीरो एरर है जो कौन से इंस्ट्रूमेंट में है, इसमें आपको बताता हूं कि इसमें जो है एक आपको रीडिंग दिखाई दे रही है, इसमें जो है थिम्बल की जो है बैरल के साथ जो है जीरो वो मैच नहीं कर रही। इट इज समवट 3 रीडिंग्स अबव देन द जीरो। सो जो जीरो से है 3 रीडिंग ऊपर जा रही है। सो ऐसी रीडिंग को हम जीरो एरर करते हैं। तो इसे हमने करना क्या है, whenever we will take the reading with the micrometer, जब भी आप माइक्रोमीटर के साथ रीडिंग लोगे तो तब आप क्या करोगे कि इस 3 रीडिंग्स को जो है आप जाके अपनी रीडिंग में सबट्रैक्ट करोगे। जितनी रीडिंग आपको है जीरो की जो अप जा रही हैं वो जीरो एरर में पहले ही दिखाई दे रहा है। whenever you have closed your micrometer, जब आपने अपने माइक्रोमीटर को बिल्कुल क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद 3 रीडिंग्स है जो जीरो की फिर भी ऊपर जा रही हैं, तो आप मेजरमेंट के बाद जो है इन 3 रीडिंग्स को अपनी रीडिंग में सबट्रैक्ट करोगे। दिस इज द मेथड की हाउ टू कवर फ्रॉम वी कैन से कि जीरो एरर से आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे मुक्त करोगे या कैसे उनके साथ रीडिंग्स लोगे। सो उसके बाद देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ऑल्सो वी कैन से कि हमारे रूटीन लाइफ में पूछा जाता है कि विच वन इज मोर एक्यूरेट, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो वर्नियर कैलिपर है वो जो है हमारा 10th पार्ट ऑफ एन 1 mm जो मेजर करता है, 1 mm का 10वां भाग, और जो माइक्रोमीटर है 1 mm का 100वां भाग मेजर करता है। सो इसमें कौन सा ज्यादा एक्यूरेट हो गया, सो इसमें जो ज्यादा एक्यूरेट है वो हमारा माइक्रोमीटर होता है। सो विच वन इज मोर एक्यूरेट, देन माइक्रोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर। सो डेट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बोथ ऑफ दिस, बिकॉज जो हमारा माइक्रोमीटर है वो 100 पार्ट है जो 1 mm का मेजर करता है, बट जो हमारा वर्नियर है डेट मेजर ओनली 10th पार्ट ऑफ एन 1 mm। सो देन नेक्स्ट पार्ट इज एक्यूरेसी इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो एक्यूरेसी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर हम एक्यूरेसी की बात करें कि हम तीनों इंस्ट्रूमेंट ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं, उसमें स्टी रूल आ गया, उसमें वर्नियर कैलिपर आ गया और उसमें माइक्रोमीटर आ गया। सो तीनों में से कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने एक्यूरेसी बनाई है। सो सबसे कम जो एक्यूरेसी स्टी रूल की है, स्टी रूल के बाद जो एक्यूरेसी आ जाती है वर्नियर कैलिपर की, वर्नियर कैलिपर के बाद जो एक्यूरेसी आ जाती है माइक्रोमीटर की। So these are the increasing order, accuracy in increasing order. So उसके बाद have you any questions from our trainees as well, from other staff members?
So kindly raise hand if anybody having questions. So hope, I think I shall be very thankful to all our NIMI officials, and special thanks to our Punjab Technical Education Board and Department, who have given me such a wonderful opportunity to interact with you, and also to interact with the trainees of different states. So I am very thankful to our team, as well as our NIMI teams, and as well as the officials of NIMI, so that are doing a wonderful task for in such a worst environment. So I am very thankful to all my officials also. So thank you very much.